let's start power electronic devices. And in this, we will be discussing all the, not all the major devices which we will be using throughout the course. And these devices include power diode, which is basically from the uncontrolled, from the category of uncontrolled device. If we because in our course we will be focusing the control aspect, so therefore we have categorized these devices in 3 stages as far as control is concerned. So power diode is the device which has only 2 terminals, and therefore it is uncontrollable device. Then we have 3 terminal devices, and one of those is called thyristor. There are different types of thyristors. One we are going to use is SCR, silicon controlled rectifier thyristor, and it has 3 terminals. Third terminal is meant for the control, but the control is only half. That means we can switch this device on, and after switching it on, we cannot control it. We cannot make it off when we want. It would be turned off with the help of the signals only. And for switching off, we have certain conditions. If those conditions are not met, this device is not going to turn off. Excuse me, sir. जी please. सर आपने हमें जो टेक्स्ट बुक बताई है सर, उसका 3rd एडिशन बताया सर, तो आपने जो अपलोड किया है वो 4th एडिशन है सर। जी 4th एडिशन भी वैलिड इनफ है, अच्छा है। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट? आप कौन सा यूज कर रहे हैं सर? मैं 4th ही यूज कर रहा हूँ। राइट सर, ठीक है। और जो एक्चुअली सोल्यूशन मैनुअल मार्केट में अवेलेबल है दैट इज फॉर 3rd, तो इसलिए वो अभी तक 3rd ही लिखा हुआ है, बट आई विल बी यूजिंग 4th एडिशन। सर वो सोल्यूशन मैनुअल अपलोड कर देंगे आप सर? मैं सर्च करूंगा अगर मुझे मिल गया, बिकॉज एक दफ़ा मेरी नज़र से गुजरा, दैट वाज फॉर 3rd एडिशन। ठीक है, तो आप मेरे से ज़्यादा गूगल करते हैं तो यू कैन फाइंड इट। इफ नॉट तो मैं भी आपके साथ ही सर्च करूंगा, आई अपलोड दैट। ठीक है, अगर आप पहले से मिल जाए तो आप अपलोड कर दीजिए। राइट सर। Okay, so and then we have a 3rd category in which we can turn on the device and turn off the device when we want. ठीक है, उसमें जितना फास्ट करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। So we can control the device in full mode. ठीक है, and that is why 3rd category is called fully controlled devices, which include MOSFETs, IGBTs, and few types of thyristor as well, which are capable of with respect to control, we can turn off. So there are some thyristors also available, which are in the category of fully controlled devices. So these are the 3 major topics in this, and then there are few new devices. We'll just get some introduction about that, but major 3 devices, uncontrolled devices, half controlled and full controlled devices, will talk about them in detail. So when we are going to discuss the devices, we'll keep in mind a few things: their features, their configuration, their classification.
So very often these power electronic devices are also called as power semiconductor devices. And the material that is used in majority of the devices is silicon based, while in advanced semiconductor devices we have other material like silicon carbide, GaN devices, gallium nitride based devices, and many other materials, or combination of silicon and other material is also uh, uh, based on those semiconductor materials. Also, some of the devices, advanced devices, available in the market. Okay, so as I said earlier, in power electronics, we will be looking at two states of the semiconductor device, and that is on state and off state. Because the fundamental reason is to reduce the power loss. Because in amplifier mode, we have seen the power loss of the semiconductor device is very, very large. And for a power converter, we cannot afford that loss. So, and why we have chosen on state and off state? Because in both cases, somehow the other, the power in that state, power drop, power absorbed by the semiconductor device in that state is close to zero. Ideally speaking, close to zero, but it has some amount, and we'll talk about it. सर होती है ये दो स्टेट सर, ऑन और ऑफ? जी बिल्कुल, हम इन्हीं दो स्टेट्स में ऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम सैचुरेशन और कट ऑफ मोड को अप्लाई करेंगे. सो वी विल नॉट लेट द सेमीकंडक्टर डिवाइस गो इनटू एम्पलीफायर मोड. ठीक है, सो हम सिर्फ इन दो स्टेट्स के अंदर डिवाइस को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आई गेस कि आपने जो ये रिस्ट्रिक्शन थी इसके बारे में स्टडी किया होगा कि किस तरह से आप एम्पलीफायर मोड में लेके जाते हैं और किस तरह से आप डिवाइस को स्विचिंग के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. याद है? जी सर पढ़ा था. बिल्कुल. तो यहाँ पे भी हम इनको लिमिट कर देंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन ओनली बी ऑपरेटेड in on state and off state, and it will not go into amplification mode. Okay, so in on state, what we expect from the semiconductor device is that the voltage drop across that device is zero, ideally speaking zero, but obviously because of some factors we'll discuss in coming slides, those factors still produce some voltage across the device while it is in on state. And in on state, how much is the current? How that can be limited? Is there any limit of that current in on state? सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है वो कितना करंट कंडक्ट करेगी? इज देयर एनी लिमिट? सर नहीं, वोल्टेज पे है. सिर्फ वोल्टेज पे लिमिट है, करंट पे कोई लिमिट नहीं. सर मतलब ऑन स्टेट पे जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है वो जीरो होना चाहिए और ऑफ स्टेट पे जो आपका करंट वो जीरो होना चाहिए. जी, लेकिन ऑन स्टेट में कितना करंट चलेगा, हाउ वी डिफाइन दैट, एंड कितना मैक्सिमम करंट? सर ये तो लोड पे डिपेंड करता है ना, आगे से क्या लगा हुआ है, कितना वो करंट ड्रॉ करते हैं. सही है. एंड व्हाट अबाउट द सेमीकंडक्टर डिवाइस?
इस पे डिपेंड करता है सर जंक्शन पे डिपेंड करता है सर। एक्चुअली डिवाइस की सिलेक्शन पे वो डिपेंड करेगा कि आप जो करंट इसमें से थ्रू कराना चाह रहे हैं, is that semiconductor device is capable to conduct that current. ठीक है, so if by this I mean कि अगर आपका जो semiconductor device है उसका maximum current limit जो है वो 10 एम्पियर है और आप उसमें से 20 एम्पियर गुजारना चाह रहे हैं, that means कि your selection is incorrect. ठीक है, so अगर आपको working current का आइडिया है तो accordingly you have to select the semiconductor device. And now second situation is कि आपने operating current जो है वो 20 decide कर लिया है and you have selected a semiconductor device which has a maximum current limit of 20 amperes. Is your selection right? आपने जो डिवाइस सेलेक्ट की है क्या वो करेक्ट है, वो ऑपरेट करेगी? सर आप क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर सकते हैं सर? श्योर कि आपका जो ऑपरेटिंग करंट है अकॉर्डिंग टू द लोड दैट इज 20 एम्पियर्स और आपने जो डिवाइस सेलेक्ट किया उसका मैक्सिमम करंट इज 20 एम्पियर्स, तो आपकी सिलेक्शन, हाउ डू यू क्वांटिफाई योर सिलेक्शन? आपकी सिलेक्शन ठीक है, गलत है? सर अभी हमने क्या उसको मैक्सिमम करंट किया है 20 एम्पियर्स। सर हम 20 से थोड़ा बड़े वाले ये अप्रोप्रिएट नहीं है सर, थोड़ी सी 20 एम्पियर से ज्यादा वाली ले रहे। वेरी गुड, हमें सेफ साइड पे रखना चाहिए जब भी हम सेमीकंडक्टर डिवाइस सेलेक्ट करें, तो हमेशा एक सेफ मार्जिन के साथ। सर मार्जिन हमारी आर्बिट्ररी रहेगी या फिर हम मतलब कोई सेट? नॉर्मली हम करते हैं कि अगर आपका ऑपरेटिंग वो करंट जो है वो 10 है तो हम डिवाइस सेलेक्ट करते हैं 20 या उससे भी हाई, जितना सेफ मार्जिन होगा उतना अच्छा होगा। राइट सर। एंड व्हाट आर द रीजंस? सर ट्रांजिएंट आपकी आवाज कट गई थी, जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइस सेलेक्ट करेंगे वी विल कीप इन माइंड देयर इज अ सेफ्टी मार्जिन। ठीक है, लाइक ये अगर हमने 10 एम्पियर्स के लिए डिवाइस को ऑपरेट करना है, वी विल सेलेक्ट अ डिवाइस विच इज केपेबल और हुज मैक्सिमम करंट लिमिट इज अराउंड 20 एम्पियर्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, व्हाई वी कीप दैट सेफ्टी रेंज, सेफ्टी मार्जिन हमें क्यों रखना पड़ता है? सर ट्रांजिएंट्स की वजह से सर करंट ओवरशूट अंडरशूट। वेरी गुड, ट्रांजिएंट की वजह से और वैसे ही तारे छारे ना चल जाए, वो जो वैसे होता है सारे आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे ना। हाँ, और क्या रीजन हो सकता है? एक तो ट्रांजिएंट्स आ गए कि आपकी क्योंकि स्विचिंग कर रहे हैं तो ड्यूरिंग स्विचिंग यू कैन, देखो 3 मोड होते हैं ना असल में ट्रांजिस्टर के, ठीक है, तो तीसरे मोड में घुसाने नहीं देना होता, वो होता है ना जैसे बीजेटी होता है ना, उसमें आप सैचुरेशन मोड में नहीं घुसाने दे रहे होते, बिल्कुल ताकि बीजेटी वो को हम, सैचुरेशन मोड में जब जाएगा फिर वो वही फंक्शन अलग तरीके से करेगा, स्विच की तरह नहीं करेगा ना। हाँ बीजेटी को हम एम्पलीफायर मोड से रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं हम। वी विल नॉट लेट के सेमीकंडक्टर डिवाइस गोज इनटू एक्टिव मोड। What other factors may be? चले मैं क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड कर देता हूँ। Why we need a
heat sink with the semiconductor device. तो Sir, वो heat- गर्म होएगा, जलेगा तारे। जी जी बिल्कुल सही BJT है। होते हैं। जब डिवाइस हीट अप होगी तो डिवाइस में से जब करंट पास करेगा तो वो हीट अप होगी, ठीक है, उसका जो जंक्शन टेम्परेचर है दैट वुड राइज। तो इसलिए हम थोड़ा सेफ मार्जिन रखते हैं कि कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के अंदर डिवाइस जो है वो हीट अप होगी, तो हमें एक सेफ मार्जिन रखना होगा सो दैट कि हम जो भी कूलिंग सप्लाई करें, if there is a delay in the cooling, device should be capable enough कि वो कूलिंग पहुंचने तक वो डैमेज ना हो। और इवन इफ वी डोंट यूज द कूलिंग एस्पेक्ट, ठीक है, समटाइम्स वी डोंट यूज फैंस इन द पावर कन्वर्टर्स। तो अगर फैन के बगैर आपकी डिवाइस जो है वो करंट इजीली कंडक्ट करवा सकती है, तो फिर हम जो है वो सेफ्टी मार्जिन तक रखते हैं। अदरवाइज वी टेक द सेफ्टी मार्जिन इवन हायर, हम डबल की बजाय 3 टाइम्स की सेफ्टी मार्जिन रख सकते हैं। सर ये फर्स्ट फैक्टर दोबारा बताए, ट्रांजिएंट वाला, वो क्या होता है? पहला तो ये हो सकता है कि क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज द डिवाइस इन ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट, मीन स्विचिंग स्टेट। और स्विचिंग स्टेट का मतलब ये है कि डिवाइस जो है वो कभी ऑन होगी कभी ऑफ होगी। सो करंट समटाइम्स it would conduct some current and other time it may not conduct the current, ठीक है। तो इस तरह से करंट को एकदम कंडक्ट करवाना और फिर एकदम ऑफ कराना, that would result in spikes in switching noise, ठीक है। सो इन स्विचिंग की वजह से जो ट्रांजिएंट आ सकते हैं, उसकी वजह से फिर आपका जो करंट है वो नॉर्मल से ज़्यादा फ्लो कर सकता है। और जब नॉर्मल से ज़्यादा फ्लो करेगा तो उसके लिए आपको एक सेफ मार्जिन रखना होगा while selecting the semiconductor device. सर अभी आपने सर हीट सिंक की सर बात की थी। सर हीट सिंक के लिए सर हम कैलकुलेशंस करते हैं सर कि मतलब हमने किस डिवाइस पे कितना बड़ा हीट सिंक लगाना है, या फिर हम ये भी सर उसकी भी कैलकुलेशन होती है। और अगर आपने सेमीकंडक्टर डिवाइस बीजेटी या मॉसफेट उसकी हीट सिंक उसकी डाटा शीट देखी हो, तो उसके अंदर एक फैक्टर होता है which is I think watts per डिग्रीज होता है शायद, या डिग्रीज पर वॉट होता है, इस तरह करके कुछ एक पैरामीटर होता है which is basically related to that heat of the device, जंक्शन टेम्परेचर के साथ which is linked, ठीक है। तो उसमें आप ये देखते हैं कि कितने वॉट्स पावर एब्जॉर्ब होगी डिवाइस के अंदर, और अकॉर्डिंगली कितना टेम्परेचर राइज करेगा, और वो उसको डिसिपेट करने के लिए यू विल बी यूजिंग दैट हीट सिंक, ठीक है। ओके, सो इन ऑफ स्टेट ideally speaking the current is going to be 0 and the voltage drop across the device is maximum, and that maximum is defined by the supply sometime if it is directly connected with the supply, ठीक है। So what about the real scenario current? Is it going to be actually 0? नो सर, लीकेज करंट तो मेरे ख्याल से फ्लो करेगा सर। जी बिल्कुल। और लीकेज करंट की व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट लीकेज करंट? सर वो मिली एम्प्स में होती है सर, मिली एम्प्स और माइक्रो एम्प्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस।
Therefore, we have decided to operate semiconductor device in switching mode in on state and off state because of these two reasons, that the power consumed by that semiconductor device is close to zero in these two states. That is why we are operating semiconductor device only in these two states. So for a power circuit, and in that power circuit we are using a semiconductor device along with the information electronic circuit. जैसे हमने पहले भी बात की, so for PWM generation we are going to use electronics semiconductor also, but that semiconductor does not consume much power. और will try के जो dissipated power है, power loss within the semiconductor device, be it information electronics, be it power electronics, is small, so that it does not affect the efficiency, overall efficiency of the complete system. And to reduce the power loss, we will use special packaging, heat sink, so that the heat is not accumulated within the semiconductor device. ठीक है, क्योंकि अगर हम heat sink, अच्छा, by the way, let's say we are not going to use heat sink. What will happen? सर हीट अप हो जाएगी, हीट अप होगी डिवाइस और डैमेज होने का चांस होगा. ठीक, सो if in my case, my design, I don't want to use heat sink, और स्टिल मैं चाहता हूं कि मेरा जो पावर सर्किट है वो रिलायबली ऑपरेट करे, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस, हाउ आई सर वो जी मैक्सिमम करंट की रेंज ज्यादा कर दें, काफी ज्यादा. एग्जैक्टली, वेरी गुड. सो वी हैव टू कीप द मैक्सिमम रेंज वेरी वेरी हाई. ठीक है, लाइक के जिस तरह अभी हमने बात की कि अगर करंट जो है वो 10 एम्पेयर हमने कंडक्ट कराना है, लेकिन मैं हीट सिंक यूज नहीं करना चाह रहा, so then I have to select the semiconductor device which can conduct, or maximum current of that could be around 40 or 50 amperes. ठीक है, तो उसका जो maximum junction temperature है, that is much larger than that 10 amperes. तो उस तरह से फिर डिवाइस आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी अगर हम हीट सिंक यूज नहीं करना चाह रहे. सो देयरफॉर we'll use heat sink and use the select of a semiconductor device around its conduction current or maximum current is twice of the operating current, twice or little bit, you know, number हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं. अच्छा, let's say I have a bigger heat sink. Can I use a single heat sink for multiple semiconductor devices? तो वो फिर अपना अपना चार्ज नहीं होगा, चार्ज डिसिपेशन मतलब जो रेट होता है. सर वो डिपेंड करता है किस तरह का हीट सिंक है सर. अगर मतलब सेंट्रलाइज्ड अगर कूलिंग है तो फिर तो सर सारी की सारी डिवाइसेस को कूल डाउन कर देगी. ठीक है, वो यही मकसद है. तो इज इट पॉसिबल कि मैं एक ही हीट सिंक के ऊपर सारे डिवाइसेस लगा दूं? यस सर, पॉसिबल. व्हाट केयर आई शुड वो चार्ज डिसिपेशन वाला कोई काम नहीं करता था, वो जैसे वो ऊपर वो जो वो लगता था उसके बिल्कुल मॉसफेट होता है जो, जी जी जी, उसके ऊपर एक मेटल वो लगता है ना. जी जी, उसी के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शुड देयर बी सम प्रिकॉशन जिसको हमें थोड़ा हाँ, केयर. वो टच नहीं होना चाहिए, वो बहुत कम होता है. एग्जैक्टली, वो मतलब वो यानी कि वही चार्ज का ही होता है ना. बिल्कुल बिल्कुल, वो
शॉर्ट सर्किट कर सकता है। अगर क्वेश्चन हम रिपीट करें सर। क्वेश्चन ये है कि कैन आई यूज मल्टीपल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऑन अ सिंगल हीट सिंक? नो सर। व्हाई? सर मतलब हर सेमीकंडक्टर डिवाइस की एक अपनी सर रेंज होगी सर, जिसमें के बाद वो मतलब इससे मैक्सिमम करंट देंगे तो वो हीट अप हो जाएगा सर। हर किसी का सेम तो नहीं होगा। नहीं, हम उनके इलेक्ट्रिकली कंडक्शन की बात नहीं कर रहे, मैं सेपरेट ही कर रहा हूँ। करंट उनका सेपरेट होगा, लेकिन ये कि जो थर्मल केयर है वो तो हीट सिंक ने करनी है ना, कि उसको कूल डाउन करना है तो वो हीट सिंक ने करना है। तो सर एक उसका तो एक ही काफी है सर। एक सिंगल हीट सिंक के ऊपर, यानी कि मैं एक बड़ी सी हीट सिंक ले लूं और उस पे मैं 3, 4, 5, 6 जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उन सबको मैं एक ही जगह पे कंबाइन कर दूं। सर रिलायबिलिटी सर सिस्टम की कम हो जाएगी, क्योंकि अगर वो सिंक फेल कर गया सर सर तो वो फिर तो मॉसफेट यही लग रहा है वैसे सर। नहीं, मैं अगर सच्ची बात बताऊं, यही लग रहा है कि ऊपर वो जैसे मेटल होता है ना मॉसफेट के ऊपर, वो जी फिर वो चार्ज डिसिपेट ही करता है। वो मैंने जैसे उसको उंगली भी लगाओ, उससे भी वो इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं वही आप। फिर अगली डिफरेंट चार्जेस होंगे, उसकी अपनी चार्ज डिसिपेशन वाला सीन होगा सारों का। तो उसको तो हम वो किसी तरह अवॉइड कर सकते अलग हैं। अलग करेंगे ना कि वोल्टेजेस आगे पीछे हो रही हैं। तो उसको हम किसी तरह से इंसुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सो देयर आर सम इंसुलेटर्स अवेलेबल जो कि हीट सिंक के साथ लगते हैं। तो अगर हम वो इंसुलेशन यूज करें देन वी कैन कंबाइन all the power electronics devices on a single heat sink। ठीक है। तो अगर आपने कुछ सर्किट्स वगैरह देखे हों ऐसे, तो फॉर द सेफ्टी ऑफ जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमारा चैलेंज क्या है, हमने वॉल्यूम कम करना है, साइज कम करना है। तो अगर हम मल्टीपल हीट सिंक लगा देंगे तो ऑब्वियसली हीट सिंक हैज इट्स ओन वेट। जितनी मल्टीपल हीट सिंक्स लगती जाएंगी तो वेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो उसका इजी वे ये है कि वी कैन यूज अ सिंगल हीट सिंक विद इंसुलेटर, ताकि हम डिवाइसेस को आपस में शॉर्ट से भी बचा सकें और इनका जो थर्मल केयर है, इनको जो कूल डाउन करना है वो भी कर सकें। ठीक है। इवन इन सम ऑफ द केसेस जो जो आउटसाइड कवर होता है, some designer they use outside packaging cover as a heat sink, but they use insulation। ठीक है। वो थर्मली कपल कर देते हैं, बट इलेक्ट्रिकली वी हैव टू isolate the power semiconductor device from metal। ठीक है। तो कूलिंग के एस्पेक्ट में देर आर मल्टीपल थिंग्स विच कैन बी डन। सर मतलब हम एक ही हीट सिंक यूज कर सकते हैं फॉर मल्टीपल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं काम कर रहा था इन्वर्टर के ऊपर, तो आई यूज द सेम सिंगल हीट सिंक, a बिगर हीट सिंक, और जो पावर जिसके ऊपर मैंने ऑपरेट करना था दैट वाज अराउंड 2 or 3 किलोवाट। तो अब उसके लिए आपको पता है कि अगर मैं हर डिवाइस के साथ हीट सिंक लगाऊं तो फिर जो साइज है इट वुड बी मच लार्जर। लेकिन जब मैंने सिंगल हीट सिंक यूज की तो प्रॉब्लम यही था शॉर्ट सर्किटिंग का। तो देन आई यूज्ड अ वेरी गुड इंसुलेशन, और उस इंसुलेशन के साथ फिर जो रिजल्ट था दैट वाज मच बेटर। सर वो इंसुलेशन क्या थी, नेल पॉलिश? नहीं, एक आप कह लें कि पैड मिलते हैं, इंसुलेटर पैड्स। अच्छा,
जी सही। वो तो पैड्स वैसे आप ही छोटे-छोटे होते हैं, मैंने कहा शायद नेल पॉलिश भी तो एक इंसुलेटर ही होता है ना? जी तो बिल्कुल आपने आप वो इसी तरह से एक थर्मल पेस्ट होता है, जी सर। वो अगर आपको एक्सपीरियंस हो, माइक्रो प्रोसेसर जब सीपीयू पे लगाते हैं तो उसके ऊपर भी एक हीट सिंक यूज करते हैं, वो थर्मल पेस्ट होता है दरमियान में। जी, जी, वो सर जैसे वो ऊपर वो लगाते हैं, वो तो कहते पैड कौन हैं सा यूज करते हैं? जो गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं ना, उसमें ना जी जैसे जी आप प्रोसेसर लगाते हो बिल्कुल ना, उसके पहले थर्मल वो लगाना पड़ता है, जी 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 थर्मल पेस्ट लगाना पड़ता है। हाँ थर्मल पेस्ट लगता है, वो आता है इसका 3M कंपनी का। तो जी सर। सर वी ऑलवेज यूज अ पैड। यस, अगर हमने मल्टीपल पे जाना है तब भी, और इवन सिंगल पे करना है तब भी। दैट मींस ऑलवेज इट इज कंपल्सरी। इट इज कंपल्सरी टू यूज दैट पैड। उसकी वजह ये है कि समटाइम ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका सर्किट अगर ओपन है या उसके अंदर कोई ओपन वायर्स हैं, तो अगर वो वायर हीट सिंक को टच कर रही है और अगर आपकी हीट सिंक जो है वो इंसुलेटर के साथ नहीं है, दैट मीन्स कि आपकी जो डिवाइस है दैट वुड बी शॉर्ट सर्किट थ्रू दैट वायर। ठीक है, तो अगर आप उसको कंप्लीटली इंसुलेट कर देंगे तो फिर यू कैन अवॉइड दैट प्रॉब्लम, शॉर्ट सर्किटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वी हैव फ्यू मिनट्स, और इस फ्यू मिनट्स में लेट्स डिस्कस द पावर लॉस दैट occurs in the semiconductor devices. So this is the voltage, current and power curves, और इसमें फर्स्ट सेक्शन को अगर आप देखें लेफ्ट मोस्ट, there is maximum voltage which is going down to a very small value, and in the same section current is going high from a small value to a maximum value. ठीक है, तो करंट रैंप अप कर रहा है, वोल्टेज रैंप डाउन कर रहा है, and multiple of these two is a circular or a parabolic curve for the power. ठीक है, so which state is it? सही वही ना, वो ऑन ऑफ हो रहा है। जी बिल्कुल ऑन ऑफ हो रहा है। सो ये वाली स्टेट कौन सी है? सर ऑन होगी सर, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास 0 है। जी बिल्कुल। सो पहला स्टेट जो है ये अभी ट्रांजिएंट स्टेट है, इसमें टर्न ऑन होने जा रही है सॉरी, और अभी तक प्रॉपरली टर्न ऑन हुई नहीं है, लेकिन टर्न ऑन होने जा रही है। सो दिस इज अ ट्रांजिएंट स्टेट फ्रॉम ऑफ मोड टू ऑन मोड। ठीक है, सो दिस इज टर्निंग ऑन स्टेट और ऑन ट्रांजिएंट, and then second section where we have a very small voltage but the current is maximum, and then multiple of these two is the power, and we can see power is less than the previous turning on state. This is on state and the leftmost is turning on state. और आप सर ये ऑफ स्टेट कौन सी है? ऑफ स्टेट उसके ऊपर भी आ जाते हैं, एंड देन वी हैव थर्ड स्टेट व्हेन द वोल्टेज इज राइजिंग फ्रॉम अ लो वैल्यू टू अ मैक्सिमम वैल्यू, एंड सिमिलरली इन द करंट गोइंग डाउन फ्रॉम अ मैक्सिमम वैल्यू टू अ मिनिमम वैल्यू। सो आप देख सकते हैं कि जब करंट ड्रॉप करके मिनिमम पे जाता है तो इट्स इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर्स और माइक्रो एम्पेयर्स। Therefore, the power loss in off state is the least of all other states.
ठीक है, whereas ऑन स्टेट में ऑफ स्टेट से ज्यादा पावर लॉस है. Why? Because the current is maximum and voltage is minimum, but that voltage is not in the order of millivolts or microvolts. It's in the order of actually some volts. So 0.7 volt or 1 volt or 2 volts, very small value, but still has a significant value as compared to off-state current. ठीक है, therefore on-state conduction power loss, conduction loss is significant, is more than the off-state power loss. ठीक है, so basically we have 4 losses, लेकिन उसमें हम जो ऑफ स्टेट लॉस है इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू ऑल अदर लॉसेस. और फिर हमारे पास बेसिकली 3 रह गए, जिनमें से 2 जो हैं वो स्विचिंग लॉसेस हैं और एक जो है वो कंडक्शन लॉसेस है. सो ऑन स्टेट लॉस इज कॉल्ड कंडक्शन लॉस, and during turn on state and during turn off state we have transient losses or switching losses. ठीक है, so from this power figure which loss is higher? Sir, switching losses? Obviously. So these switching losses are much more larger than the conduction loss. So now question is, can we minimize that switching loss? On state loss को हम तो minimum नहीं कर, ठीक है, conduction loss को तो हम change नहीं कर सकते. We can change the switching loss, we can minimize the switching loss somehow. And how that? सर स्विचिंग लॉस क्या मतलब, ये जो लाइन आ रही है बिल्कुल उधर से, या जैसे टर्निंग ऑफ जो पैराबोला बन रहा है इसको हमने स्क्वायर करना है? बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम किसी तरह मिनिमाइज कर सकते हैं. नहीं करना क्या है, ये जो जैसे ये पैराबोला है इसका हमने स्क्वायर बनाना है? नहीं, हम चाह रहे हैं पैराबोला की जो ये जो आप कह लेंगे इसके एरिया अंडर द कर्व है पैराबोला, हम उसको मिनिमम कर. इज इट पॉसिबल? सर ये कर्व्स छोटी कर दें इसकी, आई और वी की स्लोप्स, आई और वी की स्लोप्स छोटी कर दें. ये पी जो है, ये जो पी है ये पावर लॉस है, ये पावर लॉस की बात है ना? जी प्लीज. पावर लॉस है, अच्छा ये पावर लॉस. फिर कैपेसिटर लगा दे, फिर क्या होगा? वो स्मूथिंग हो जाएगी ना, वो चार्ज एक जगह स्टोर हो रहा है, वैसे ही लॉस कम हो गया, ग्राफ भी वो थोड़ा से वो हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब देखे ना 0 से ऊपर जा रहा है ना, तो आराम से ऐसे उठेगा. ये तो मल्टीपल का रिजल्ट है ना. अच्छा, एक्चुअल कर्व तो V और I है. हम V और I में चेंज कर सकते हैं, P तो उसका रिजल्टेंट है ना. स्लोप्स को अगर सर उनको ज्यादा रैंप किया जाए जी, V और I की स्लोप्स चेंज की जाए सर, ये चेंज हो नहीं जाएगा? बिल्कुल वो ज्यादा. तो वो हम कोई तरीका है इनको स्लोप्स को चेंज करने का? सर वो जो टाइम था हमारे पास स्विचिंग टाइम, उसको इंक्रीज कर दें. ठीक है सर एक बात बताएं सर, अगर हम लैग ले आए एक चीज में. टाइम हो गया, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा. वेरी गुड. ये जो भी आपने बात की सर, क्या लैग की? जी बिल्कुल. हाँ लैग ले आए ना, लाइनें इक्वल उसमें कर लें. जी सही कह रहे हैं. अगर हम लैग से यहाँ तक ले आए लैग, ये सर इंडक्टिव लोड लगाना पड़ेगा ना हमें? एक सेकंड, हमने 0 नहीं, यहाँ पे हम एक लगाएंगे कैपेसिटर.
लेकिन कैपेसिटर सर लीडिंग लोड नहीं है। सही हो गया, पहले कह दिया था कैपेसिटर लगाना है। बिल्कुल आपने सही कहा था। बेहतरीन। तो ये बेसिकली हम डिले कर सकते हैं करंट राइज को। और इस सर ये एक्सप्लेन करें ना करना होगा। हाँ। जी, इसको बेसिकली हम कहते हैं ZVS, जीरो वोल्टेज स्विचिंग। ठीक है, जब तक ये वोल्टेज जो है वो जीरो नहीं हो जाता तब तक करंट राइज नहीं करने देगा। और सिमिलरली अगर हम ऑफ साइड पे देखें तो ऑफ साइड में आप जीरो करंट स्विचिंग, तो जब ये वोल्टेज है, ये बजाय इसके कि ये राइज यहाँ करना शुरू करे, इसको हम डिले कर दें और ये ऐसे राइज करें। ठीक है, सो ड्यूरिंग टर्न ऑन वी कैन यूज दिस टेक्निक, or during turn off we can use this another one, and that is called zero current switching. ZCS and ZVS. So ZCS के लिए we use an inductor और ZVS के लिए we use a capacitor. वो किस तरह से होंगे वो फिर हम आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे, होपफुली अगर हमारे पास टाइम रहा। सर एक और बात बताएं, ये वोल्टेज ये जो होती है ये जीरो टच कर रही है या नहीं, जब नीचे उस स्टेट में आती है, ऑन स्टेट में? ऑन स्टेट में तो टच नहीं कर रही। कुछ ना कुछ वोल्टेज तो होगा ना यहाँ पे। अच्छा सर, और ये करंट में भी थोड़ा थोड़ा करंट होगा यहाँ पे? हाँ सर हमारी नेक्स्ट क्लास है। सही। सर एक जीरो मुझे करंट बेसिक स्विचिंग सवाल के पूछना हम है, उसके इंडक्टर बाद यूज कर रहे हैं। कैपेसिटर आपने कब बताया हम कब यूज करेंगे सर? कैपेसिटर हम यूज करेंगे जब हमने टर्न ऑन स्टेट को डिले करना है, यानी कि एक लॉस हम एट अ टाइम कम कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा करना इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। मतलब जीरो स्विचिंग के लिए? सर जी मेरे आपसे ये पूछना था कि पूरा आगे क्यों नहीं ले जाते ये जी, जैसे ये वो जो है ना, वो जो एक स्लोप है, जैसे आई की स्लोप है, आपने इसे थोड़ी सी आगे की है, जब पूरी तरह से आगे क्यों नहीं कर देते? ये जो जब वो ये ऑन स्टेट कंडक्शन स्टेट पे ले आओगे वो फिर जीरो है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैपेसिटर का चार्जिंग डिपेंड करेगा ना सर, स्लोली करंट बढ़ना या एटलीस्ट तो आप चार्ज नहीं हो जाता। इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता ना। यस सर जी, तो जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। आइडियली वैसे बात बिल्कुल सही की है कि अगर हम इसको यहाँ तक ले जाएं, ठीक है, लेकिन दैट इज आइडियल कंडीशन, तो हम इस स्लोप को जो है वो इतना फाइनली कंट्रोल नहीं कर सकते। सर आपने ZVS पे कैपेसिटर कहा है ना? जी, ZVS जो है ये, इसमें हम एक कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। किस तरह यूज करेंगे वो? लीड करेगा और उधर आप वोल्टेज। सर हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा सॉरी, तो हम यूं करेंगे, ये वाली स्लाइड जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा इसके ऊपर थोड़ी सी करेंगे। ठीक है सर, आप एनडीज डाउनलोड कर ले सर काइंडली। हाँ जी, एक सेकंड। चलो, थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द लेट। कोई मसला नहीं सर जी। ठीक है, सो we'll start from the same in next class. Thank you. अल्लाह हाफिज़ सर।